Did you know that nearly 25% of containers originating from India are transshipped through foreign ports? Out of these, 80% go to ports like Colombo and Singapore, while others are handled by hubs such as Port Klang. पर दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस वजह से इंडियन पोर्ट्स हर साल करीब 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं। ये लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया के कार्गो का ट्रांसशिपमेंट दूसरे देशों में हैंडल किया जाता है। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी पर इसके इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करें तो ये लॉसेस करीब 3 से 4,500 करोड़ तक इंक्रीज हो जाते हैं, और अगर दूसरे देशों को कार्गो हैंडलिंग का मौका मिलता है तो ये लॉस और भी बढ़ सकता है। These figures are available in a report on the Ministry of Shipping Sagarmala portal. Look at this data. One question arises. Can India do something to stop these losses? Absolutely it can. To address this, the country needs to develop a dedicated transshipment port. In this direction, the Indian government is set to invest rupees 72,000 crore under a holistic development approach. अब बात करते हैं उस आइलैंड की जो इस मैसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सेंटर होगा, द ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये अंडमान और निकोबार ग्रुप का पार्ट है जो एक इंडियन यूनियन टेरिटरी है और बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। This development project includes a major transshipment port at the southern tip of Great Nicobar Island, an airport, and several other infrastructure projects. Today, the 72,000 crore master plan, designed by Niti Aayog, is progressing rapidly. आज के 7 PM highlights में हम इस मास्टर प्लान के हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझेंगे, ग्रेट निकोबार आइलैंड की ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि ये रिमोट आइलैंड स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस प्रोजेक्ट इज हाईली सिग्निफिकेंट इन मेनी वेज as it will not only establish an advanced shipping hub but also lead to several other major developments. These developments include a greenfield international airport, 2 greenfield cities, a coastal mass rapid transport system to enhance island connectivity, a free trade zone, and an international cruise terminal along with a ship breaking yard. इन सब के अलावा ये प्रोजेक्ट का स्कोप और भी काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड की ज्योग्राफी की। ये भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो मलाक्का स्ट्रेट के पास एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में सिचुएटेड है। आइलैंड की लश रेन फॉरेस्ट और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इसको और भी स्पेशल बनाते हैं। लेदरबैक टर्टल्स, निकोबार मेगापॉड्स और निकोबार क्रैब ईटिंग मकाउस जैसे रेयर स्पीशीज यहाँ पाए जाते हैं। The location of Great Nicobar Island is one of its biggest advantages. It is close to the Malacca Strait, which connects the Indian Ocean and the Pacific Ocean. This project will strengthen India's maritime security, economic potential and geostrategic presence. ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्ट्रैटेजिक पॉइंट से ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पॉइंट से भी काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट कई मायनों में इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, काफी बूस्ट भी देगा। The project includes an international container transshipment terminal (ICTT), which can make Great Nicobar a significant player in cargo transshipment. The ICTT is expected to boost economic activities in the region. Nicobar plan के through ports, airports जैसे vital infrastructure develop किए जाएंगे जिससे यहाँ की लोकल पॉपुलेस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकेंगी। The Nicobar project will help in creation of tourism prospects in the region. This will also aid the income generation. The per capita income in Andaman and Nicobar Islands for the year 2015 and 16 was rupees 1,24,361. This was much lower than the per capita income of other union territories like Chandigarh, Delhi, Puducherry, etc. इस प्रोजेक्ट की मदद से कई सोशल इनिशिएटिव्स को भी काफी बूस्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, एडिक्वेट एयर, सी और वेब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करार होगा। इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ ई-गवर्नेंस सर्विसेज सच एज टेलीमेडिसिन एंड टेलीएजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ मेजर कंसर्न्स भी है। निकोबार प्रोजेक्ट विल पोज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ऐसा माना जा रहा है कि इसके दौरान 1 मिलियन से ज्यादा पेड़ काटे जा सकते हैं जो इस एरिया के वाइल्ड लाइफ और कोरल रीफ्स को डेवास्टेट कर सकते हैं। निकोबार प्रोजेक्ट शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स के ट्रेडिशनल राइट्स को इग्नोर करना एक बड़ा इशू बन के सामने आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रीजन एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी पर काफी क्वेश्चंस उठाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट्स के बिना वायबल है? सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? A balanced development plan must prioritize tribal rights while ensuring that their livelihoods and cultural heritage are safeguarded. Alongside, detailed social and environmental impact assessments are essential to understand the broader consequences of proposed projects.
To minimize ecological damage, infrastructure construction should adopt eco-friendly practices that align with sustainable development goals. Most importantly, transparency in data and policies is crucial to build trust and facilitate informed decision-making among all stakeholders. The Great Nicobar Island Project एक bold और ambitious step है जो भारत के strategic और economic future को reshape कर सकता है। लेकिन इसकी सफलता इसी बात पर डिपेंड करती है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो। प्रोग्रेस और प्रिजर्वेशन का सही बैलेंस बना के हम ना सिर्फ आइलैंड की यूनिक बायोडाइवर्सिटी और लोकल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट का एक बेंचमार्क भी सेट करेंगे। ये एक मौका है भारत के लिए ये दिखाने का कि ग्रोथ और कंजर्वेशन एक साथ चल सकते हैं और इससे एक प्रॉस्पेरस और हार्मोनियस फ्यूचर का रास्ता तैयार हो सकता है।